चल रहा है ना? अभी बढ़िया, अभी बढ़िया। So, sir, मेरा next question to you is like, what is the growth you have seen in the field of physiotherapy from the time you have started your career till date? I think the growth has been pretty good. Okay, in terms of monetary aspect, in terms of education, in terms of professionalism, in terms of how people recognize you. But there is something called as like something we are depriving of. Like there's a problem with the students who are coming. So the students at my time, like 12 years, 15 years back, the way we have been taught, the way we behave in front of our teachers, nowadays it is totally different. You know, still now if I go to my teacher, I have that habit of touching their feet and saying sir namaste. But nowadays students hand will be on your shoulders. So there is a drastic change, and I think that is the only thing which is actually not making them a good professional. So there are Right. many changes we want. Yes, we have grown a lot. I think in the eyes of the people, in the eyes of this, what we say, the patients also, we have gained a lot, no doubt about it. Initially, I'll just quote an example. Like when I started my practice, I thought my clinic will have 60-year, 50-year-old people. After 5 years, something drastically changed. Now we'll be having patients of 14 years of age. Right now we don't have an age criteria for our patients. Like anybody can be a patient, even a pediatric can be a patient. So your thought process have changed. Everything has changed a lot, a lot. I'll say we are growing at a good rate, but yes, there are some problems, and everywhere there are problems. So we should cater those problems positively. और अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मशीन लगा दो, अभी प्रीहैब और रिहैब दोनों में फिजियो इज ग्रोइंग गुड, राइट? यार देखो कैसा है ना, अभी कैसा है, आप आपके पास वो है क्या, बाइक है क्या? हाँ, है ना। तुम बाइक लेकर गए इधर क्या कहते हैं, हवा भरवाने, उसके अंदर गैस डलवाना है तुमको टायर में। आप उसके पास जाके खड़ा किया, आपके पास हीरो होंडा है, आपने बोला भाई उसमें ना 32 पॉइंट्स हवा डाल दे, राइट? बट यू आर नॉट आस्किंग दैट गाय हु इज एक्सपर्ट इन पुटिंग द हवा, कितना हवा मेरी बाइक में आना चाहिए। तो उसमें राइट। गलती किसका है? अपना गलती है। तो जो ये इलेक्ट्रोथेरेपी हम लोग यूज कर रहे हैं, वी हैव प्रमोटेड दैट इन द माइंड ऑफ पेशेंट। नाउ पेशेंट थिंक दैट इज फिजियोथेरेपी। सो राइट। इट्स अस हु आर एट फॉल्ट। पेशेंट की कोई गलती नहीं भाई, पेशेंट पैसा दे रहा है, पेशेंट इज कमिंग टू यू फॉर ट्रीटमेंट। इफ वी हैव मिसलीडेड देम, दे विल बी मिसलीडेड ऑलवेज। राइट। सो मतलब अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, स्टूडेंट्स के बारे में एग्जांपल देता हूँ। अगर एज ए टीचर, if I have not given them values, if I have not taught them properly, if I have not taught them professionalism, if I have not taught them what is the difference between right and wrong, so it is not the problem of the student. राइट। I am at fault. If my students are like that, I am at fault. If my students are working good, I should be praised. So you always see a good teacher will never take a praise कि हाँ मेरा बच्चा था। बच्चा खुद कहता है अरे मैं उसका आदमी था। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर जोगिंदर यादव, मैं आज भी बोलता हूँ भाई उसने मेरे को बनाया, वही आदमी था राइट। जो उसने मेरे को मार मार के बनाया। लेकिन दैट रिस्पेक्ट, दैट थिंग वी नीड दैट इन ईच अदर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पेशेंट की कहीं गलती नहीं है, पेशेंट इज राइट, पेशेंट इज ऑलवेज राइट, वी ऑलवेज से पेशेंट इज ऑलवेज राइट। तो आप जैसा बोलोगे पेशेंट वैसा करो। दूसरा कैसे ना, फिजियोथेरेपिस्ट में प्लीड करने की आदत है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे पेशेंट हो, सर मैं, आप कैसे हैं, आज कैसा लग रहा है, अच्छा सर मैं आपके घुटने पे डायथर्मी लगा दूं, या आपके घुटने पे हम ये लगा दें, आज मैं आपको मोबिलाइजेशन कर दूं, नहीं नहीं आज मुझे अल्ट्रासाउंड करो, जी सर। आप किसी और राइट। प्रोफेशनल के पास जाओ, किसी भी प्रोफेशनल के पास, मैं बोलता हूँ केमिस्ट के पास जाओ, आप उसको बोलो सर में दर्द हो रहा है गोली दे दे, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव यू गोली। बट ओटीसी की बात, आप बोलोगे यार मैंने ना क्रोसिन खाई थी मैं ठीक हो गया, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, क्रोसिन से कुछ नहीं होगा, ये बेकार है, डोलो खाओ। और यू विल राइट। बी लाइक ये केमिस्ट है, इसको सब पता है। तो व्हाई दैट इज नॉट इन फिजियोथेरेपी? व्हाई पेशेंट इज लीडिंग अस? बिकॉज वी डोंट नो हाउ अ प्रोफेशनल शुड बिहेव। हमें क्या है, हम अच्छे थेरेपिस्ट है, हर टॉक में ये बोलता हूं, अच्छे थेरेपिस्ट क्या होता है? जिसको काम करना आता है, लेबर। अच्छा राइट। प्रोफेशनल क्या होता है? जो अपनी बात बनाना जाने। जैसे लास्ट उसमें बोला मैंने कि अगर तू एक लॉयर है, मेरा लॉयर, मैंने लास्ट एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर तू मेरा लॉयर है और तेरे सामने किसी का खून करता हूं, तो मेरा केस लड़ेगा? लड़ेगा ना। मेरे से पैसा भी लेगा, मेरे को फांसी राइट। पे भी चढ़ाएगा, फिर भी मेरे घर वालों से मरने के बाद पैसा लेगा। दैट इज प्रोफेशनलिज्म। राइट। बट वी डोंट हैव दैट प्रोफेशनल। हम पेशेंट से प्लीड कर रहे हैं, सर आप कल क्यों नहीं आए, आपको कल आना चाहिए था, नहीं आया नहीं आया, कैंसिल देयर अपॉइंटमेंट, 1 घंटा पेशेंट लेट आ रहा है।
सर आप लेट हो गए, अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं। व्हाई यू आर सीइंग दैट पेशेंट, मेक दैट स्टैंडर्ड। आप ऑर्थोपेडिशियन का एक बार वो लेकर जाओ अपॉइंटमेंट, मत जाओ अपॉइंटमेंट, वो देखता है, Right. वो खाली बैठा हुआ हमारी तरह अंदर बैठ के वो ना पबजी खेलेगा, पेशेंट नहीं देखेगा। दैट इज रॉन्ग, वी आर एट फॉल्ट, nobody is, no patient is at fault, patient is always right, we are wrong. Right, sir. I agree with you. Completely agree. So, sir, as we all know that there are upcoming techniques like cupping hai, needling hai, or taping, and what all you do. So, sir, how has all this contributed in the physiotherapy treatment part? Yeah, see, these all techniques are just a part. They are like a modality what we are using in the physiotherapy treatment. और कैसे है ना, अभी being an instructor मैं बोलता हूँ, but instructor से पहले मैं एक physio हूँ. So Right. being an instructor, yes, these therapies are very nice. You should include them into your protocol. But if you lose your basics, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ई टैलेंट हंट किया मैंने, एक फिजियो विदाउट फिजियो का एक्सरसाइज प्रोग्राम आया, मैंने उससे पूछा भाई तुमने 10 रिपीटिशन क्यों बोला, बोलते हैं ना 10 रिपीट करो, 10 5 बार repetition. दबाओ, हाँ, क्यों बोला, व्हाट इज द Hold रीजन करो. बिहाइंड दैट, सिंपल। तो सर क्योंकि सर सब देते हैं, तो सब देते हैं मतलब एक फीमेल 22 साल की है, एक फीमेल 44 की है, एक फीमेल 88 की है, सब अपनी उम्र से 2 गुना, तुम सबको 10 रिपीटिशन दे रहे हो कैसे? अब इसका आंसर पता है कौन सी बुक में है, जो तुमने सेकंड ईयर में पढ़ी हो, ग्रीन वाली एक बुक आती थी, दीना गार्डनर। Dina Gardiner. हाँ, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज होती है, आरएम चेक करते हैं, ऑक्सफोर्ड फॉर्मूला होता है, डिलोम्स टेक्निक होती है। आप बोलते हो हम एक्सरसाइज साइंटिस्ट हैं, अपने को वो ही नहीं पता, तो क्या करोगे नीडल डाल के? Right. अब तो फिर क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या है इन टेक्निक्स का, दीज आर वेरी गुड टेक्निक्स इन हैंड ऑफ अ गुड प्रोफेशनल, बट इफ यू डोंट नो द बेसिक, आपको एनाटॉमी नहीं पता, तो पता है लोग क्या बोलते हैं, सर नीडल कितना डालना है, कहाँ डालना है? नीडल कितना कहाँ नहीं डालना, नीडल मसल में डालना है। अब आपको पता ही नहीं मसल का है, आपको पता ही नहीं उसकी ओरिएंटेशन क्या, क्योंकि आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी। अब वो नहीं पढ़ी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तभी तो क्या होता है ना, एक पेशेंट कैसा है, मतलब यू सी एवरीवेयर, आई एम सेइंग 90%, इवन मी एट वन पॉइंट वी वर डूइंग सेम थिंग फॉर एवरी बैक पेशेंट। आप देखो बैक पेशेंट में आप वही प्रोटोकॉल, अब वो स्पॉन्डोलिस्थेसिस हो, लाइसिस हो, लोसिस हो, आइटिस हो, वाइटिस हो, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, बेटा वही चल रहा है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं हमने सर्जरी क्यों पढ़ी, हमें पता ही नहीं फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ी। जैसे ऐसा Right. क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर बहुत हम सारा फार्मा ये क्यों तो पढ़ रहे हैं। सबसे, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, मेरे भी डीएम्स में बहुत आता है. तो सर अपन ने फार्मा क्यों पढ़ी, हम डेविडसन क्यों पढ़ते हैं, हम तो मेडिसिन देखते ही नहीं है, फार्माकोलॉजी देते ही नहीं है। अरे भाई पेशेंट जो आया है वो बॉडी लेकर आया है, वो पार्ट थोड़ी, वो अपना घुटना थोड़ी क्लिनिक पे रख के जाता है। तो Right. तेरे क्लिनिक पे आके ऐसे लगेगा मेरे घुटने में अर्थराइटिस है, रख लो मैं कल लेकर जाऊंगा, इसको ओवरहॉलिंग करके दो। ये पूरा पेशेंट है, उसका जितना एनाटमी था, उसकी एक एक ऑर्गन की फिजियोलॉजी थी, उसका फंक्शन, अगर वो सही नहीं है तो घुटना भी सही नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव रेड सो मच, वी हैव साइंस, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड समवेयर और द एल्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम आल्सो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मेंटालिटी आल्सो। Right. सो सर वो पहले क्वेश्चन मिस हो गया था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू लाइक अटेंड दी वर्कशॉप्स. सो कैन यू प्लीज रिपीट दिस फॉर आवर I ऑडियंस. told you, internship and post-internship bachelors will be the right time when you have seen the patients, not when you're seeing the patient. When you have seen some cases and then you need to develop on these cases, then it is right time when you think. जैसे मैं example देता हूँ मेरा अपना, मेरे को जैसे कॉलेज में we were taught that mobilization of lumbar spine. तो सर बोलते थे फेसेट जॉइंट मिल गया, हाँ हाँ मैं सर उधर ही है, मेरे को पता है इधर है, और हाथ तो रख ही देते हैं इधर ना उधर, थोड़ा 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर व्हेन आई बिकम अ क्लिनिशियन तब पता लगा साला फेसेट नहीं आता तेरे को आता ही नहीं है फेसेट, तेरे को हो ही नहीं तेरे से फेसेट। फिर जाकर किसी के पास ट्रेनिंग लिया, समझा, तो वर्कशॉप आर टू फिल योर गैप्स ऑफ एजुकेशन, देन कम्स दोज वर्कशॉप जिसमें आप अपने आप को डेवलप करते हो। जैसे मैं मायोफेशियल में ज्यादा काम करता हूं, तो मैं वही वर्कशॉप अटेंड करूंगा जो मेरे को मायोफेशियल की तरफ लेके जाए। तो आई हैव अ स्ट्रीम ऑफ वर्कशॉप्स, तो आई डोंट डू कि मैं आज न्यूरो करा रहा हूं, आज मैं ऑर्थो कर रहा हूं, आज मैं नहीं, मैं मायोफेशियल एक्सपर्ट विद शोल्डर इज माय व्हाट आई फील कि मेरे को ज्यादा पढ़ता हूं मैं, तो ठीक है, एक अपना एक है उसमें रहने का है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
internship, post internship, always don't waste your money and time, without this. After सर एक before this. क्वेश्चन, ओके ओके सर, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर विदाउट टचिंग पेशेंट्स हाउ टेली रिहैब इज इफेक्टिव एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टेली रिहैब? तो Okay, so there are many drawbacks of tele rehab. और सही बात है, देखो टेली रिहैब जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ वो दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड. सो वी डोंट वर्क ऑन द सिम्टम्स की पेशेंट ने बोला मेरे घुटने में दर्द है तो हम उसको वेगली बोलेंगे तुमको ये प्रॉब्लम है, बिकॉज वी नीड टू डू सम टेस्ट ऑन द पेशेंट एज वेल फिजिकल. सो फिजियोथेरेपी में यस, जो पेशेंट आप देख चुके हो जिसको आपका पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है, those patient for follow-ups good for tele rehab. But to see a new patient where he needs a real rehabilitation, it is a problem. But yes, अगर आपको लगता है कि इट्स एन इमरजेंसी प्रॉब्लम, सपोज एक पेशेंट को बहुत बैक में दर्द है, उसको नहीं समझ आ रहा है, आपको थोड़े फंक्शनल टेस्ट आते हैं, आपने करा के देखे और आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, सो इट इज लाइक कि जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो टेली हेल्थ करना है. बट यू शुड नॉट, अगेन इंडिया में प्रॉब्लम वही है कि जो सबसे इजी काम है उस पर आ जाते हैं. तो टेली हेल्थ इज वेरी इजी, अपना घर में बैठो, गाड़ी में बैठो, वॉशरूम में बैठो, पेशेंट देख रहे हैं. फिजिकल थेरेपी, it's not only the physical modes you are using for the therapy, it is the physicality of the patient also. We have to touch, palpate, do movements, because सब कुछ patient functionally नहीं बताएगा. Assessment में functional is the last, but before that we have so many things to understand. So until unless we do that, we can't do that. दूसरी चीज है generalization. कैसा होता है, अब आपने बोला, गुफरान ने बोला कि सर एक काम करो, घुटने की ऐसी एक्सरसाइज कर लो क्योंकि घुटने में दर्द है. That exercise what you have taught me on Telrehab will be generalized for all my household people. Second thing, the problem will call how I know that you are a physio. Nobody knows you are a physio or me, I am a physio. वो तो मेरा Instagram profile बोलता है. Profile तो कोई भी बना लेता है. So there is no legality on the, anybody can teach anything without anything. So that is another problem what will happen. So these are 2-3 points what I think will have negative impact. Even a problem आएगा, telehealth इतना famous हो जाएगा तो क्लिनिक कौन खोलेगा? अब जिसका क्लिनिक खुला हुआ है, जो 1.5 लाख रुपए मंथली रेंट दे रहा है, 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है 10 एम्प्लॉइज को, वो किधर से खर्चा निकालेगा? सही बात. हाँ, सो कहीं ना कहीं जो आपका एक साइकिल है ना, दैट विल गेट ब्रोकन. बट यस, व्हेन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट. सो इट इज लाइक जब ऑप्शन नहीं है या फॉलोअप्स के लिए पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल वो. Okay. So, sir, one question we are getting is that why we physios don't get paid internship like other medicos? We have to See, pay for internship in hospital. yeah, so first paying for internship is wrong, that I understand. But again, there is a system which has been maintained, so I can't comment on that. So paid internships are wrong, but yes, getting paid, the problem is, I don't know who said that ki every professional get. The private people, when they do these internship in private hospital, they don't get a stipend. Second thing, we do an internship of 4 to 8 hours, whereas internship in other professional are 24 hour into 3 days. कभी देखा JR वगैरह जो जाते हैं, right? So there is a disparity in that, yes, and sooner or later it will change, because बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको स्टाइपेंड मिलता है. GMC नागपुर, they get stipend. So this is how you have built. So if you are into college, you should fight for that. The thing is that nobody want to fight, they want to complain. आप बोलो कॉलेज अथॉरिटी से हम नहीं देंगे इंटर्नशिप के लिए, we will find the internship hospitals which will not take anything. But nobody do that. Okay sir, yes sir, okay we will pay. And after that people complain. Don't complain at the time of when injustice is there. Don't complain afterwards. That is why I think, and it is wrong. Yes, paid internships are wrong. फिर भी अभी भी सर कोई मतलब फिजियो स्टूडेंट्स दे स्टे विद द MBBS इंटर्न्स टिल लेट, मतलब इवनिंग तक 7-8 बजे तक रहते हैं कोई रहते हैं. मैं आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी प्रोफेशन. आई एम सेइंग दैट कि एक होता है ना, एक तरीका बना हुआ है. सपोज सिंपल सी बात है, अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का ओनर हूं सपोज, ठीक है, मुझे देने की बजाय मिल रहा है, तो आई विल मेक इट अ लॉ ना कि यार इंटर्नशिप, फ्री की इंटर्नशिप भी कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, तो आई विल मेक इट अ लॉ, मेरे हॉस्पिटल में जो आएगा वो पैसा देकर आएगा. सो सिस्टम तो हमने खराब किया, किसी ने तो ऑफर शुरुआत में किया होगा. सो इट्स बेटर कि वंस यू गो फॉर द इंटर्नशिप एंड समबडी आस्क, ट्राई टू हंट फॉर द हॉस्पिटल हु डोंट आस्क. तो जब डिमांड ही उनका पूरा नहीं होगा, दे हैव टू कम टू जीरो, then they will come to stipend. So you have to change ourselves, we need to change our. मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्न किया था, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं लिया था भाई, फ्री किया था हम लोगों ने. So you need to fight for each and everything, because there is no one to fight for you, and especially in private colleges
you have to work according to the protocol. So there are protocols कि इधर जाना है, इतने बच्चे इस हॉस्पिटल में जाएंगे, you have to go, you have to go, you have to go. Because फिर बच्चा कहता है मेरी डिग्री रुक जाएगी, मेरा ये रुक जाएगा. तो there are so many fears and I'll tell you one सबसे important, सबसे जो strongest है ना वो student power है. And physiotherapy की student power is unused. We are literally covered because पहली बात तो हमें डराया बहुत जाता है, दूसरा कोई सपोर्ट के लिए आगे नहीं आता है. You have to take charge. You have to take charge for that. और सर और एक क्वेश्चन जो बहुत हम लोग को कॉमनली डीएम में आता है कि some tips to study anatomy. Okay, so anatomy, I'll say anatomy is very easy to study. The problem is we are studying anatomy first to pass exams. ठीक है. दूसरा हमने anatomy पढ़ा बुक से. Everybody can understand हिंदी ना? I'm more expert in Hindi. So दूसरी चीज अपना एक तो हमने एग्जाम के लिए पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा बुक से. कभी आपने एनाटॉमी को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया? कभी एनाटॉमी को अपने फैमिली पे अप्लाई किया? नहीं किया. फंडे हैं, सिंपल फंडे. आप एक स्केलेटन लेके बैठो, जैसे मैंने लास्ट में भी बोला था एक बार, जो मसल जॉइंट के आगे वो कराती है फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन, जो मसल जॉइंट के पीछे वो कराती है एक्सटर्नल रोटेशन, जो जॉइंट के लैटरली वो कराएंगे अबडक्शन. सिंपल ना. Why you are making yourself so engrossed in every anatomical thing? नहीं, बहुत इजी है. एनाटॉमी मतलब जो चीज बॉडी में अच्छे. कितनी हड्डी है बॉडी में? 306. यार 306 5 साल में नहीं याद होती क्या? 600 प्लस 800 या 600 मसल है टोटल. 600 या 800 मसल याद करना मुश्किल है. द प्रॉब्लम इज आप क्रैम कर रहे हो उसको, आप उसको रट रहे हो. देखो बॉडी पे कहाँ है स्माइलिंग मसल. आप किसी को आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, नाइस स्माइल. उसका सिंपल तरीका बताओ स्माइल कौन सी मसल से होती है, तो लिखो नाइस दिस मसल. हम बोलते हैं ना नाइस बाइसेप्स, क्योंकि सबको सिर्फ बाइसेप्स पता है. किसी को बोलते देखा है नाइस पेक्टोरल्स? नो, नाइस चेस्ट बोलो ना, नाइस पेक्टोरल्स. तो जब आप उसको डेली लाइफ में लाओगे बात खत्म. तो एनाटॉमी इज टू उसको, हाँ भाई वैक्सीनेटर पता है तो मजे ले रहा है तो. सो प्रॉब्लम इज आप हर चीज को ना ऐसा जबरदस्ती नहीं पढ़ना, उसको एंजॉय करना. अब एग्जांपल एनाटॉमी पढ़ने का, हफ्ते में एक केस ले लो. नी केस लिया, नी की रेलेवेंट एनाटॉमी पढ़ो, उसकी रेलेवेंट बायोमैकेनिक्स पढ़ो, और सिर्फ ये देखो अपने पेशेंट में कि जो बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी आपने पढ़ा वो उस पेशेंट में कितना है और कितना चेंज हो गया. राइट. मिनिस्कल इंजरी जो होती है वो इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन नी के मुड़ने की वजह से होती है, एकदम फोर्स आती है. तो ये एनाटॉमी तो बताते हैं कि एक मिनिस्कस बड़ा है, एक मिनिस्कस छोटा है. तो तुम उसको उल्टा पढ़ो. तुम एनाटॉमी को पढ़ के मत चलो, तुम पेशेंट उठा के एनाटॉमी पढ़ो. इट विल बिकम इजी. और यही बोलना है पेशेंट को. कभी भी देखो ना किसी को, तो मैं तो यही देखता हूँ, अरे यार ये तो स्कोलियोटिक है. एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल. So, in my habitual language, physiotherapy has come, anatomy has come. तो हम बात ही ऐसे करते हैं. हम ये नहीं बोलते कि यार he has a running nose. हम बोलते हैं इसकी nasal cavity में कोई तो लोचा है. So, थोड़ा सा easy हो गया अपने लिए चीजें याद करना. यार क्या sternocleido है इसकी यार, मतलब she is looking beautiful. ये चीजें हैं जिसको एनाटॉमी सीखने में अपने को हेल्प करेगा. मतलब बी वेरी इजी. एक बार ट्राई करके देखना सीरियसली. अपने जितने फॉलोअर उनको बोल कि अगली बार किसी को कॉम्प्लीमेंट करे ना, एनाटॉमिकल कॉम्प्लीमेंट करो. राइट कि भाई आपका ये ऐसा मसल अच्छा लग रहा है या ऐसा अच्छा लग रहा है. सेम वे जो नर्व होती है, नर्व को ये मत पढ़ो नर्व का कोर्स क्या है, ये देखो कि किसी नर्व के कटने से कौन सी मसल जाएगी. अगर आप ये समझिए कौन सी नर्व कटने से कौन सी मसल जाएगी, सब कुछ याद हो जाएगा. एग्जाम्पल देता हूँ. सियाटिक नर्व सबको पता है, लेकिन आप मीडियन, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व के बारे में पूछिए, एक्सिलरी नर्व, तो सबका दिमाग घूमता है, क्योंकि सियाटिक आप रोज सुनते हो. सो मेक एनाटॉमी अ हैबिट. सो वंस यू मेक इट अ हैबिट, वेरी इजी टू डू. और कंसेप्ट बना अपना, जैसे मैंने एंटीरियर वाला कंसेप्ट बोला, आगे वाली इंटरनल रोटेशन, जस्ट कंसेप्ट बनाओ. कभी कंफ्यूज नहीं हुआ पायरिफॉर्मिस क्या करती है, क्योंकि पायरिफॉर्मिस पीछे है, एक्सटर्नल रोटेटर एक्सटर्नल रोटेशन ही करेगी. यू विल नेवर फेल इन एग्जाम. For sure, 110%. Right. So guys, be ready with your questions. Question answer session will be starting soon. Or sir, someone is asking that if can we private college students do internship in government hospitals?
Anybody can do, but it depends on your state laws. वैसे I don't think so there is any problem with that. You need to just get an NOC from the MS. That's it. MS और DMS से NOC चाहिए and college NOC and I think मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे भी ऐसा ही होगा. Nobody can stop you to do Right. internship from any government hospital. So, sir, there is a question ki so and so university provide placement for BPT students. So, is there any other colleges who provide There are many placement? colleges. There are many colleges who give placement, but placement like what? Professional courses should not have placements. Right. एग्जाम्पल लेते हैं एक और मैंने जब पास आउट किया था एमपीटी तब मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया दैट टाइम दे वर पेइंग 40,000 रुपीज राइट आई क्लियर द इंटरव्यू बट दे वर आस्किंग फॉर 3 years ऑफ दैट वो क्या होता है Experience. कॉन्ट्रैक्ट Contract. कॉन्ट्रैक्ट Okay. तो मैंने उसको छोड़ दिया तो 5 साल तो मैं बहुत दुखी रहा यार 40,000 की नौकरी चली गई लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि शायद आज 80 पे अटका होता लेकिन आज मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है Right. राइट सो प्लेसमेंट फ्रॉम अ कॉलेज और पता है मैक्सिमम कॉलेजेस जो प्लेसमेंट कराते हैं वो ऐसी हॉस्पिटल में कराते हैं जहां से उनके टाई अप्स हैं सो गेट अ सैलरी ऑफ 14,000 15 यू कांट फाइट फॉर योर सैलरीज और ज्यादा से ज्यादा आजकल एमएनसीज में भेजते हैं वो कंप्यूटर जॉब्स के लिए तो व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग ओवर देयर so professionals के लिए there should not be any placement what I feel personally if you want yes many colleges nowadays all the private deemed university providing this placements यार देखो प्लेसमेंट में तुम कहाँ जाओगे या तो किसी ऐसी कंपनी जो होम विजिट पे भेजती है या एमएनसी जो तुमको काम कराती है कौन सा हॉस्पिटल तुम्हारी प्लेसमेंट लेगा नो Right. हॉस्पिटल विल टेक प्लेसमेंट और कोई लेता भी है जो नया हॉस्पिटल खुलता है वो कितने बच्चे उठाएगा 5 10 बैच तो 100 का होता है 50 का बैच होता है किधर जाएंगे सब तो वी डोंट हैव दो प्रोफेशनल्स के लिए आई डोंट फील दैट देयर शुड बी एनी प्लेसमेंट्स Good universities for MPT sports. ये क्वेश्चन ओके कर सो रहे हैं. यार एमपीटी स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जीएनडीयू है अमृतसर में डीवाई पाटिल भी आपकी बिकॉज दे हैव देयर ओन व्हाट वी से स्टेडियम इज देयर संचेती इज वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ना जामिया मिलिया इज आल्सो देयर इन दिल्ली आई थिंक मणिपाल इज आल्सो अ प्राइम इंस्टीट्यूट सो देयर आर मेनी And पंजाब इंस्टीट्यूट में फॉर भी द गुरु नानक खालसा आई गेस. जीएनडीयू आई टोल्ड फर्स्ट ना जीएनडीयू गुरु नानक देव हाँ. यूनिवर्सिटी Right. जीएनडीयू Sir, what is the best places where after BPT students can work? यार ये कैसा क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाई यू वांट टू वर्क सी व्हाई यू वांट टू वर्क व्हेन यू कैन बी व्हाट वी से द ओनर ऑफ योरसेल्फ मेरा फंडा ये है मतलब अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे नौकरी करनी है नौकरी में यार कितना कमा लोगे देन यू डोंट हैव जॉब सेटिस्फेक्शन सो जॉब्स आर फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न समथिंग न्यू then go to doing something of your own be a freelancer because ultimately आप प्रोफेशनल हो यार अब देखो कितने भी डॉक्टर्स रहते हैं वो हॉस्पिटल में पहले जॉब करते हैं उसके बाद दे बिकम कंसल्टेंट्स सो एक्सप्लोर योर फील्ड द प्रॉब्लम इज वी हैव एक्सप्लोर्ड ओनली ऑर्थो न्यूरो कार्डियो बट देर इज एवरी पार्ट ऑफ द मेडिसिन वेयर वी आर रिक्वायर्ड लिवर हो गया ईएनटी स्पेशलिस्ट को हम लोग चाहिए डेंटिस्ट्री को हम लोग बहुत सारी जगह जहां हम गए नहीं है तो बी एंटरप्रेन्योर एंड एंटर दोस फील्ड डोंट जस्ट रश टुवर्ड्स वेयर यू कैन वर्क अगेन इफ यू हैव डन एमपीटीज इट्स ऑलवेज गुड टू गो फॉर एकेडमिक्स बट अगेन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ एकेडमिक्स सो आप देखो आपको क्या चाहिए अगर आपको पैसा चाहिए तो बी अ फ्रीलांसर बी अ व्हाट वी से एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन डू वंडर्स नो क्वेश्चन अबाउट दैट Sir, so Surbi Bora is asking us why is MPT so important? I believe experience लेना ज्यादा जरूरी है. See, there are pros and cons on everything. I'll quote again an example. Suppose आपको ACL टेयर होता है ठीक है सपोज ऐसा ना हो सुरभि अगर हो जाए तो मेरे को ब्लेम मत करना अगर आपको ACL टेयर होता है तो आप किसके पास जाओगे फिजिशियन के पास कि ऑर्थोपेडिशियन के पास चलो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास गए ठीक है इट्स ओके नाउ you go out you see 2 clinics a clinic with 10 years of experience or a person who has done MPT sports with 5-year experience now what you will choose simple so that's why MPTs that's why education is important why I'm doing PhD I'm a clinician मैं अपना बीपीटी से भी क्लिनिक चलता था बट मे बी इट्स वन ऑफ माई हॉबी टू गेट माई डिग्रीज सेकेंड थिंग पीपल नो यू बाय योर डिग्रीज yes experience is always good you take your so experience is also good and MPT is equally important education should not stop that is my idea
आप एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर एमपीटी नहीं किया तो एमपीटी जिंदगी में नहीं कर सकते, एंड पीपल विल सी व्हाट यू हैव डन. इवन यू विल गो टू अ फिजिशियन, आप देखोगे अरे मेरे को यूरिन का प्रॉब्लम है, आई विल गो टू एमसीएच यूरोलॉजिस्ट. Right. So you are not seeing 25 साल experience. You will not go to 25 years of a physician. You will always choose a fresher MCH urologist. That is the power of degree. Experience is equally important, no doubt about it. So, sir, one more question is there, that why physio doesn't have that much of placement in military? No, because military have their own courses for physiotherapists. And Okay. there are opening for they have their own courses for physiotherapists. And second three, because and physiotherapists also go, if you apply in military also, you'll go directly as a captain. But there should be some vacancy, so vacancy will come and then you will go. The problem is we are not trained on field, we are not trained in the military aspect. So if you are not trained in the military aspect, nothing will work. So that's why military has this guidelines. And I'll tell you, even the military, I'll tell you this hospital, RNR hospital, RR hospital, Army Research Center in Suboto Park, Delhi. This is a research military hospital and research center, where they are providing internship to physiotherapy students also. They are hiring also people. Yeah, so we have. So CRPF, they take, CISF we have. So there are many things we have. So military is not only army. There are many parts of the military you should take care. And they take physiotherapists, yes. So, sir, one question. Rahul Singh is asking that, sir, how can one work with you? What are the criteria? भाई मेरे साथ पता है, मेरे साथ रह के तुम कुछ सीखोगे नहीं, मैं सीरियसली बोलता हूँ. मैं बहुत बेकार आदमी हूँ इस चीज में. मैं कैसा, नहीं जोक नहीं था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. मेरे काम करने का तरीका बहुत ज्यादा यार लैविश नहीं है. मैं बहुत ना क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से काम करता हूँ. मेरी जो चीजें से लोगों को समझ ही नहीं आती. मैं एनाटॉमी बायोमैकेनिक्स वाला आदमी हूँ, बड़ी चीजें करता ही नहीं. मतलब बीइंग नीडलिंग इंस्ट्रक्टर, आई टेक ओनली 1 or 2 नीडल फॉर 100 पेशेंट्स. मतलब मैं 100 में से 2 लोगों को नीडल करता हूँ. मेरे साथ वैसे भी कुछ नहीं. हाँ, अगर एटीट्यूड सीखना है, मोस्ट वेलकम. फिनिश योर डिग्रीज. आई एम इन दिल्ली 20% of the time, 20% time I am in Vadodara, 20% time in Mumbai. The problem is I am working everywhere. So if any help is needed, I'm always there. But it's very difficult to work with me, seriously. You can ask the people who are working with me. So, sir, Rosni Swain is asking that, sir, when can we start our own clinic if we have financial problems? See, it depends on what kind of finance you have. See, they have. One is like lack of funds, and the second is no funds, right? So if you have lack of funds, still you can manage a clinic. It's called as financial management. What you see कि आप किस तरीके से उस पैसे को यूज करते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एक रिहैब सेंटर ही खोलना है, ठीक है. You can very well manage in a 200 square, 300 square clinic. But if you don't have money and you still want to open a clinic, you can always go and get some, what we say, loan from the banks. Bank give physiotherapist loan, like OBC Bank is there, Oriental Bank of Commerce, they have loans for physiotherapists. Still you don't have anything, its best thing is to work domiciliary. Still you don't do that and still want to do clinic, finance like minimum 10 lakh to 15 lakh is required. But you can start with a lower, because maximum amount goes into infrastructure rather than going into machinery. Okay. I can't see you. Can you hear me, sir? Again, this happened. No, your voice is shaking. I can hear you. Okay, you can hear me. You can continue. No issues, because it's very difficult to see you and hear you. I can also see you, sir. My network is good. Your network is not good. Okay, sir. So No issues, someone Pushpajit is asking that I recently completed my BPT. So what I do, sir? Join any clinic or hospital? Yeah, that depends on you. What kind of work you want to do. See, hospital will tell you how to see number of patients and different type of patients together. Clinic will teach you how to manage a private practice, how to earn. So don't go into a clinic to learn about patients. Try to go to a clinic to learn about how to manage a clinic. So you get managerial skills from clinics. From hospital, you get so many variety of patients together and how to manage a big number of patients.
लोग क्या करते हैं ना, गलती क्या है, हम जब सीखने जाते हैं हम गलत चीज सीखने जाते हैं। हम सीखने जाते हैं पेशेंट पे क्या लगाना है। अरे वो तो तुमने बीपीटी में सीखा है। राइट। ट्राई टू लर्न क्विक असेसमेंट कैसे करते हैं, ट्राई टू लर्न अलग अलग टाइप के पेशेंट को एक साथ कैसे देखते हैं, ट्राई टू लर्न क्लिनिक का खर्चा कैसे चलाते हैं, ट्राई टू लर्न कि किस तरीके से पैसे बचाते हैं, पैसे को डबल करते हैं, किस तरीके से स्टाफ मैनेजमेंट होता है, क्लिनिकल मैनेजमेंट होता है, पेशेंट से कैसे बात की जाती है, पेशेंट को कैसे समझाया जाता है। दीज आर द स्किल्स यू नीड। तो किस टाइप की स्किल आपको चाहिए। सो हॉस्पिटल क्लिनिक बोथ गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। हॉस्पिटल में बहुत अलग सिनेरियो, आप डॉक्टर्स से मिलते हैं, आप अपनी रेपो क्रिएट करते हैं एक डॉक्टर के साथ, एक पेशेंट के साथ। क्लिनिक में आप पेशेंट के साथ रेपो क्रिएट करते हैं। तो क्या सीखना है उस पर डिपेंड करता है, व्हाट यू वांट टू ज्वाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट fight with your brain what you want in future, then shape your future, then go and do something. Just don't go haphazardly कि नहीं मेरे को तो हॉस्पिटल जाना है, वो कुछ करना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला था। नहीं, हॉस्पिटल जाके क्या आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी? विल यू बी सेटिस्फाइड विद दैट 12,000 15,000 20,000 जॉब, or you want to open a new clinic? Yes, I want to open a new clinic. So get experience in clinics, how they see patient, how they get patient, how their patient influx is there, how they are managing everything, how they are earning. So that's how you plan something. Yes. So, sir, next question is best option other than MPT. I have interest working in ICU. So यार, I think अभी तक तो सिर्फ देखो MPT is इंडिया में तो MPT के अलावा there is no option for further studies as such. If you talk about cardio also, so you need to do cardio MPTs. Yes, you will get a placement also. You get a job with BPT also if you have done some workshops of cardio. But working in super specialized field like cardio neuro, you should have a good degree with experience. Then only it will matter a lot. People are working with BPT degrees, but yes, they have some constraint. If you can do MPT, always go for MPT. You can attend multiple workshops, but that will not serve the purpose of being an MPT. MPT is MPTC. Right. So, sir, Ali is asking us, sir, what are the most rewarding short-term courses after BPT for becoming a good clinician? Who is asking? Ali, what are the most rewarding short-term courses after BPT for becoming a good clinician? By to become a good clinician, you just need a good diagnostic power. You need only to be a good clinician. You need not to attend courses. To become a good clinician, you need to brush up what you have read in your BPT. To become a good professional and to earn better, you add something which is the demand of the society. So needling and cupping are the demand of the society. That is not the need of the physiotherapist. क्योंकि जब तक ये नहीं था तब भी फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस अच्छा चल रहा था. So to be a good therapist, if the question is this, work on your assessment. जो हम कॉलेज में असेसमेंट चार्ट बनाते थे, वो क्लिनिक में कितनी फास्ट और कितने अच्छे तरीके से आप बना सकते हो. डायग्नोसिस नहीं करना, हाइपोथेसिस बनाना है. हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप सपोज करते हो पेशेंट को ये था, give treatment today, at the end of the treatment again again assess the patient for the next sitting. Don't fix everything for 10 days. There is nowhere it is written do it for 10 days. Every day you need to do assessment faster, quicker, then make hypothesis. Every day hypothesis will be rejected or accepted, and next day the treatment will change. This is how you work as a good therapist. Assessment is important. Okay. So, sir, Manasvi Mehta is asking us, sir, is it better to do MPT from India or abroad? India, no doubt about it, because maximum countries don't provide MPT nowadays. So, and second thing, the amount you are investing abroad. If you are staying abroad, yes, good to go for MPT abroad, because I think yesterday only we had a word with Lakman sir, and he told me that Bahar, nobody teaches you. It's just they take your money and they will tell you to do researches. They tell you how to proceed in researches. यही अगर आप BPT में कर दोगे तो you'll be much higher than an MPT abroad. लोग MPT बाहर से क्यों करते हैं? Because of the mentality of the people. When you write UK, USA, Canada in front of your degree, people think that he is more educated. But everybody knows that the best scholars have come out from India. So it's always better to do MPT here because you will get a good, investment and return. But if you're doing it abroad, nobody is stopping you. Go abroad, do your degrees, but try to, whatever you invested there, try to get it back first. Because 40 lakh, 50 lakh appreciation will never happen in India. Okay. Because डॉलर का प्राइस इंडिया का प्राइस में डिफरेंस है. तो आप होता क्या, आप खर्च उधर डॉलर में करते हो, हिसाब इधर इंडियन रुपीस में करते हो. So don't do that. That is not acceptable.
So, sir, I proud just visual. just a Yeah, sec. yeah, Just a sec. fine. नितिन भाई, आई थिंक जस्ट एक मिनट यार, एक तो मुझे मास्क दे दे, मैं जस्ट गिव मी अ मास्क, जस्ट जस्ट एक सेकंड, मैं मास्क पहन लूं फिर आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट अ सेकंड. Yes, sir. Take your time. माय पेशेंट विल कम एट 5:30, ठीक है ना, तो जस्ट चेक. थैंक यू. हाँ भाई बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है. आपको आ रही है? चल, हाँ मेरे को आ रही है मस्त. So, sir, someone is asking us, sir, how can we go for astronauts physiotherapy? Is there व्हाट something इज like दैट? this? आई एम नॉट अवेयर ऑफ. Sir, diagnosis. Hello. सॉरी. हाँ बोलो बोलो. Sir, good diagnosis कैसे बनता है? The question is that. असेसमेंट से. एग्जाम्पल लेते हैं. पेशेंट अंदर गया ना, हाँ मैं ये उतार लूँ मास्क, पेशेंट चला गया. हाँ सो Okay. देखो, अच्छा डायग्नोसिस बनता है अच्छे असेसमेंट से. एग्जाम्पल, Right. पेशेंट आपके पास, मैं एग्जाम्पल देता हूँ मेरे क्लिनिक का, जो गलती हमने की थी हमारे स्टाफ में से. एक 24 ईयर फीमेल मेरे पास आई. चल मैं एम्प्लॉय नहीं, मैंने गलती करी थी, हम ये एक्सेप्ट करते हैं. आई शी वॉज हैविंग ट्रेपेजाइटिस, ट्रेपेजियस पेन. 23 ईयर ओल्ड फीमेल, जस्ट स्टार्टेड हर वर्क. उसको मेरे ख्याल से 6-7 महीना रहा होगा, एक साल भी हो गया होगा. एंड शी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ पेन. तो हमने क्या किया, देखा मसल टाइट है, थोड़ा एमएफआर किया, उसके बाद कहा कि यार बहुत ज्यादा टाइटनेस है, चलो नीडल कर देते हैं. हाँ, ट्रेपेजाइटिस प्रॉब्लम वाज, ट्रेपेजाइटिस, दैट वाज आवर डायग्नोसिस. दिस इज Right. रॉन्ग, बिकॉज फिर असेसमेंट चार्ट का फायदा क्या हुआ? नाउ यू Same. स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, बेटा क्या करते हो, कैसे करते हो, हाउ इज योर menstrual health. She is a female, you need to ask about menstrual. She told me that, sir, it's okay, but the way she said okay was not okay, you know. So you need to be alone with the patient. You ask the patient again, patient said yes, there is a problem with my menstrual health. So something, if you're again the internal organs are not performing well, you will have trapezitis, you will have pain, you will have vitamin B12 D3 deficiency. Who's going to work for that? This is a diagnosis. Right. Good assessment, good questioning. और दूसरा is you should be a good listener. प्रॉब्लम आधा असेसमेंट पेशेंट बता देता है. प्रॉब्लम क्या है, हम पेशेंट से प्री एजम्प्शन कर लेते हैं. हम क्या कहते हैं, प्री एजम्प्शन होता है हमारे अंदर कि ओके ये पेशेंट आया है, हमने पढ़ा था, हमने देखा था, उधर भी क्लिनिक में देखा था, इस एज के पे ये होता है. गुफरानी होता है. ओके ये दर ओके. सो उस एज के पेशेंट को ये होता है. तो हम क्या करते हैं, प्री एजम्प कर लेते हैं. हम पहले से सोच रहे थे कि इस पेशेंट को तो भाई यही होगा, क्योंकि ये वाली वर्कशॉप मैंने की थी और मैंने उस वर्कशॉप में ये सीखा था, तो इस पेशेंट को हमने यही ट्रीटमेंट देंगे. So when you do pre-assumption, you can't diagnose a patient. So always have a good assessment skill. अगर assessment अच्छा है, simple assessment है, सारे पॉइंट उस assessment में कवर हो रहे हैं, तो your treatment will be always good and the diagnosis is always good. Okay, so Gufran can't hear you, brother. Gufran can't hear you. हाँ यार तू फिर से चला गया दोस्त. Sorry. Can you hear me, sir? हाँ अभी थोड़ा Hello. बेटर हो रहा है. रुक जा अभी आ जाएगा. वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है तेरा ना, वो आ रहा है, जा रहा है, ऐसा हो रहा है. Okay, somebody has asked me what is the difference between myopathic gait and Wedling gait. I don't know because I'm not from neuro faculty. Please ask someone who is dealing with neuro. So I am not gonna answer any of the thing related to clinics. Please. Yes. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Sir, so someone has asked us that how is the career in veterinary physiotherapy? It's a booming. It's really booming. What we say field right now in abroad. Like I think in New Zealand we have veterinary physiotherapy courses, and I think in the near future India will also grow as a veterinary physiotherapy market because आज के टाइम पे लोग अपने घर वालों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाए ना जाए, कुत्ते का ध्यान जरूर रखते हैं. सही बात है. So I think it will grow at a faster, but it will take some time because acceptance is a problem in India.
So yes, it will come as a good profession in near future, because मैंने भी ये 5 साल पहले सुना था with some of the person. Yes, it will work as a good thing. Okay, sir. Surbhi Bora is asking us, is there any chance to collaborate with you? Arey, you are already collaborating with me. You have any doubt, you can DM me, you can message me. I have only one number. I have only one Facebook. I have 3 Facebook. I have 1 Instagram account. You can DM me whatever you need, whatever help you need. I'm always there for a fellow physio. Don't worry about that. You are already with me. और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ. You can ask the people who know me that if they message me, I always try to reply as early as possible, and I Sir, try to before help you them were going to come live, I have told them the same thing, that he is available for you anytime. anytime for anything. But मतलब, it Sir, should be a proper thing. Tanmay is asking us, sir, do you document each patient paper or software? Basically, we are very old school people, so we have a register where we try to keep every document. Now, since some years, we have started making, patient sheets. So उसमें कैसा रहता है? Front sheet is all the basic details of the patient, basic assessment, and the post we have notes, soap. So we basically write the patient came like this and he was present like this. तो posture में ये problem है, उसको ये मिला, hypertensive है, वो सब हम document इस तरीके से करते हैं paper पे. So that becomes easy when a fellow physio is seeing the patient. Yes, it should be documented. Document is number one. Initially, we were not doing that, I accept, but yes, we have started it readily now. So, Saru, we would like to tell you that we will not be discussing here something related to the treatment part or something. So we will What is not the be able. question? What is the question? It's not neuro. I can answer. No issues. Sir, prolapse disc extrusion treated surgically or only by physiotherapy? It depends again on your assessment. What is the functional quality of the patient? What is what is suffering from? Is able to do his ADLs or not? What is the extent of neurological involvement in that? Unless you do an assessment, you can't comment about extrusion, because we have seen that many patients with extrusion of the disc will not give any symptom also. So how you can comment the patient is giving symptom because of that? Maybe he is having piriformis syndrome. So there can be a number of things. So unless you do a good assessment, you can't come to the conclusion that it should be managed conservatively or surgically. Surbhi Vora is telling us, yes, sir, I would, cause I really wanna be an entrepreneur in our field. Okay. Sure, you should be entrepreneur in your field. So, sir, someone is asking us, sir, is it better to do MPT or DPT? DPT यार देखो, इंडिया में DPT नहीं है अभी लीगलाइज फ्रॉम यूजीसी. तो इंडिया में MPT ऑप्शन है, फिर PhD. बाहर जाना है, यूएस में इज DPT. सो the BPT person will do TDPT over there, transitional DPT. So if you go abroad, whatever they are teaching you, if you are in India, MPT. So when DPT will come as a proper course with UGC recognition, फिर BPT MPT हट जाएगा, तब DPT रहेगा सर. So it depends on what UGC, what your government is giving you. So, sir, Roshni is asking us that, sir, how can we do good assessment? अरे यार, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया. Good assessment, देखो, simple things are simple. First, try to listen to your patient. I'm again telling you, it's very important quality of a clinician to listen to a patient, because patient will give you many things. Patient will tell you what was the injury, what was the extent of injury, कब हुआ, कैसे हुआ, what happened, what we did not. So don't ask them close-ended question. होता कैसा है? अच्छा गुफरान साहब बताइए क्या हुआ. आपने बताना शुरू किया. थेरेपिस्ट में प्रॉब्लम क्या ना, बिकॉज हम तो भाई भगवान है, तो हमें आदत क्या होती है, पेशेंट को हम उंगली कर देते हैं. ऐसा तो नहीं हुआ था. पेशेंट थिंक शायद. नो, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू अ पेशेंट. सो गिव देम ओपन एंडेड, लेट द इंफॉर्मेशन फ्लो. सुनो, पहली विजिट पेशेंट की सुनो. उसके बाद जो आपने असेसमेंट के लिए चीजें निकाली, अब जब आपने सुना तो आपको पता लग गया पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल या कार्डियो या ऑर्थो रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है. उस हिसाब से अपने दिमाग में आपने जो असेसमेंट शीट बनाई है, एक एक स्टेप करके करो. और वो भी बताना नहीं है पेशेंट को. जैसे आप गए पेशेंट के पास, आपने एक ही टाइम पे उसके घुटने को पैल्पेट किया, उसी टाइम पे आपने आरएम चेक किया, उसी चेक पे आपने उसकी एमएमटी चेक किया. ऐसा नहीं होता कि पहले मैं रेंज ऑफ मोशन चेक करूंगा, लिखूंगा, फिर मैं एमएमटी चेक करूंगा, लिखूंगा, फिर मैं उसका टेंडन चेक करूंगा. ये सब एक ही साथ किया आपने. घुटना पकड़ा, टेंडन रिफ्लेक्स चेक किया, एमएमटी करी, आरओएम चेक किया, एक साथ. तो कितना सेकंड लगता है उसके लिए.
थिंग इज दैट आप उसको प्रोटोकॉल को सिंप्लीफाई करो, आपको कैसे समझ आता है। एजुकेशन इज अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। तो हम यही करते हैं, पेशेंट आता है उसकी उसी प्रॉब्लम के हिसाब से उसका असेसमेंट बना के फटाफट उसको काम को फिक्स किया। हाँ, आज तो आपने असेस किया, कल आपको लगता है कि जो आपका असेसमेंट था वो ट्रीटमेंट मैच नहीं कर रहा है, जो बच गए होल्स वो नेक्स्ट सिटिंग में उसको असेस करना है। तो चीजें इजी बनाओ तभी बेटर है वो। Okay. Sir, so someone is asking me, is there any bridge course through which physios can also prescribe medicine? No, Hello. physiotherapist can't prescribe. Physiotherapist is a non-pharmacological field. As per Pharmacological Act of India, you can read that. They have approved only the MCI people or the people registered in MCI to prescribe medicine. The physiotherapist can't prescribe scheduled drug. They can't even prescribe OTC. They can't prescribe anything which is called as a drug. That is Sir, law. हम लोग That is law. yes. Sir, we get so many DMs about this question कि how much money a physio can make. अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो भाई, जितनी तुम्हारी हिम्मत औकात वर्थ है, तुम उतना पैसा छाप सकते हो, सिंपल सी बात है। दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम यूजिंग। जितनी आपकी वर्थ है आप उतने पैसे छाप सकते हो। थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू अर्न। आई हैव सीन पीपल who give 50,000 rupees of treatment session for 10 days. I have seen people who give 5,000 rupees of 10 sessions. I have seen people who give 50 rupees 10 sessions. Right? So it depends on you. कितना आप जॉब करोगे, 8,000 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, आप थोड़ी और मेहनत करोगे 50 हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर हो सकता है आप नेगेटिव चले जाओ, हो सकता है आप, जब मेरी शादी हुई थी मुझे याद है मैं 8,000 कमाता था। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, 11 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो मैं 8,000 कमाता था। आज के टाइम पे मैं क्या कमाता हूँ मुझे पता है, मैं लेकिन बताऊंगा नहीं कितना कमाता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। मैं इतना अच्छा कमाता हूँ कि दिल्ली में जो मेरे पास, मेरा घर नहीं है, मेरे डैड के साथ, मतलब वी आर इनटू जॉइंट फैमिली, सो ऑल द खर्चा इन दिल्ली as a upper middle class family, I'm maintaining a Honda City for myself. My wife drives a Alto, with we have a scooty, and in Delhi, in a good area, we are living very lavishly. I take 70 flights in a month, in a year, to and fro. 70 फ्लाइट महीने साल का मैं ले लेता हूँ, 70 नहीं तो 20 तो लेता ही हूँ। ये 70 लास्ट ईयर मैंने ली थी, इसलिए मुझे याद है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू कैन अर्न। There are people who are giving income tax return at a earning of crores also. Physios I am talking. In India. In India. Very famous people. So, अब मैं कैसे उसको डिफरेंशिएट करूँ कि कौन अच्छा है? So it's upon you, you know, how you manage, how। और सबसे बड़ी बात कहते हैं हम लोग कहाँ मात खाते हैं। अपना पैशन कुछ और है, प्रोफेशन कुछ और है। अब आपका दिमाग रहता है पैशन में कि मैं कितनी देर गिटार बजाऊं, एग्जाम्पल, ठीक है। आप काम, आपको पैसा कमाने प्रोफेशन से कभी नहीं होगा। प्रोफेशन पकड़ो, पैशन पकड़ो, मिला दो। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो ये देखो डांसर्स में फिजियोथेरेपी कैसे होती है। डांसर्स को चोट नहीं लगेगी, गो टू एकेडमीज, डांस एकेडमी, उधर बताओ फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, हाउ दे विल हेल्प यू। ये होता है पैशन प्रोफेशन, यहां से मिलता है आपको ऊपर जाने का। कमाई की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज फिजियोथेरेपी ऐसी फील्ड है जहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। राइट। और सर इसमें टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एवरी हाफ एन आवर और एवरी 15 मिनट्स ऑफ फिजियो कैन अर्न, राइट? यार आप, देयर टू टाइप्स ऑफ इनकम, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जो मैं जाके करता हूँ, पैसिव इनकम वो होती है जो मेरे को बिना कुछ किए भी आती है। अब फिजियोथेरेपी में ना यही ट्रेंड नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है मेहनत करेंगे पैसा मिलेगा। वी डोंट इन्वेस्ट इन पैसिव इनकम्स। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए है, एग्जाम्पल, मैंने वो क्लिनिक में इन्वेस्ट किए, मैंने बोला गुफरान ये मैं तेरे लिए 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक काम कर मेरे साथ पार्टनर बन, काम कर। कौन काम कर रहा है? तू काम कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा ना भाई। मेरे को कमा के कौन दे रहा है उस 10 लाख पे? पैसिव इनकम है मेरी, आ रही है। मैंने उसको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एफडीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपको पैसिव इनकम दे रही है ना, आपके पैसे पे पैसा दे रही है। बुक तो एक लिखी है ना जिंदगी में, एक बार मेहनत, वो बुक मुझे जिंदगी भर मेरे बच्चे तक को खिलाएगी। दैट इज अ पैसिव इनकम। सो वी ओनली थिंक दैट काम करेंगे मिलेगा। नो, वी हैव टू थिंक एज अ प्रोफेशनल, कितनी जगह से हम किस तरीके से चीजें टारगेट करते हैं, बट इन एथिकल वे। ऐसा भी नहीं है कि आप सामान बेच रहे हो, क्लिनिक पे बहुत सारी चीजें रखी हैं, पेशेंट आया तो उसको सामान बेच दिया आपने, ऐसे काम नहीं, एथिकल।
पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद जैसे फाइनेंशियल, अभी आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है क्योंकि नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, सो 6 महीने 8 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? इंजॉयमेंट के लिए फंड कहाँ से? हम कैसा पैसा आया उड़ा दिया। विजिट वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम है, जितने लोग विजिट करते हैं उनका जो पैसा था कभी नहीं टिकता, बिकॉज दे डोंट प्लान। दे थिंक कि आज 5 है कल 6 पेशेंट होंगे। आज के टाइम पे फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months दे विल नॉट हैव a single patient. Where is that fund? So Right. there are points which should be taken care while we are practicing physiotherapy. That is important. So, sir, Dr. Arushi is asking us, and she has also DM'd us before this. Sir, how can I prepare for an interview for the post of physiotherapist? See, preparing for an interview is like why I am sitting in front of you. I must be having some qualities. That's why I'm sitting in front of you. First of all, in the interview, don't try to impress the person with your knowledge. Try to impress the person with your attitude, because what an interview says see is the person who is sitting in front of them. What is their attitude, how they are speaking, the way of they are speaking, the way of professionalism, and that's what we are lacking. जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपने इंटर मेकअप कर लिया, अब आप फिजियोथेरेपिस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ डिफरेंट उसका इंटरव्यू नहीं है, एयर हॉस्टेस का इंटरव्यू नहीं है, राइट? सो योर अटायर, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू वेयर क्लोथ्स, अब क्लोथ्स में भी कैसा है ना, there's a level of how much and what you wear, that is very important. Then how you speak, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसकी बात काट रहे हो, जैसे गुफरानी सिंह समथिंग और मैं सर नहीं सर मैंने बोला था, आई वाज स्पीकिंग सर। ये सब होने के बाद पीपल विल कम, जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो उनका क्लियर है कि नेक्स्ट इंटरव्यू लेना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन पूछूं, फिर आपसे वो फिजियोथेरेपी के बारे में पूछेंगे। और कोई भी हॉस्पिटल क्या देखता है कि हाउ मच यू कैन अर्न फॉर देम, Right. यू नो, उनकी जो ओपीडी आप कैसे डबल, अगर यू हैव द आइडियाज टू डबल देयर ओपीडी, दे विल गिव यू डबल सैलरी। उनको पता है ये आदमी आएगा, इसने जितनी सैलरी लेनी है उतना ही काम करना है, व्हाई दे विल हायर यू? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड लाइक यू, सो यू नीड टू बी स्मार्ट फ्रॉम हियर and professional. When you speak, people should be there to listen to you. Don't plead. Have that basic attitude. Attitude nahi, basic attitude. We are professionals. We are giving you respect. We want respect. This is how you prepare for an interview. So your language, your way of speaking, your gestures will help you to crack an interview. And skills at last, yes. Okay, sir. So Shivangi is asking us what to do in this COVID-19 quarantine time to improve our skills. भाई पढ़ो अपनी किताबें, जो बैचलर्स की बुक्स हैं उसको निकालो, रीड रीड रीड, यूट्यूब पे जाओ, एनाटॉमी वीडियोस देखो, फिजियोलॉजी वीडियोस देखो, इतने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो अपने नोट्स डाल रहा है, पीपीटीज डाल रहा है, इसको देख के मैं भी कल से पीपीटी डालना शुरू करूंगा। I'm taking this is called a research, जो हो चुका है उसको दोबारा करना इज रिसर्च, राइट? सो दिस इज हाउ यू ग्रो। तो आप देखो आपके अंदर फिलर्स क्या हैं। फिलर होती हैं वो चीजें जो आपके अंदर कमी होती है, और सबको अपनी कमियां पता है। यू आर नॉट अ गुड स्पीकर, स्टार्ट स्पीकिंग। यू आर नॉट अ गुड, यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। कैसे करोगे? पढ़ो उसके बारे में। आपको पता आपकी एनाटॉमी वीक है, अब सब यही कंप्लेन कर रहे हैं एनाटॉमी कैसे पढ़े। किसी ने लिखा मैंने एनाटॉमी पढ़ना शुरू किया, 1.5 months we have wasted, nobody has opened the book, they are just complaining. You have to start somewhere. अब जैसे मैं राहुल का बोलता हूँ, राहुल मेरे से क्वेश्चंस पूछता है, राहुल पर्सनली मुझे डीएम करके वो बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन बोल लिखा, सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा, आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प हिम, बट वो मेरे से कहेगा ना कि सर मुझे शोल्डर समझा दो। मैं क्यों समझाऊं भाई? शोल्डर पढ़ना मेरा काम थोड़ी है, शोल्डर पढ़ना तुम्हारा काम है। डाउट क्लियर करना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, दैट मच आई विल हेल्प। सो यू नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप, then after that we will join you. This is what you should do. और अभी यार Go Physio is asking you that who is your ideal physiotherapist right now? Yeah. So I'll start. Anand Jyoti Chandrasekhan sir, he is working in Chennai. He is Guruji of my Guruji, Dr. Joginder Yadav. उसके बाद Nilima Patel ma'am is there, and I'll say two people who have inspired me since I've started my career, and their name should always be in my heart. Dr. Einstein Jerome, never seen, heard a person like that. My elder brother Dr. Sudeep Kade,
he will always be there, he's always there, and he's like a mentor to me. I'll seriously say he's like a mentor to me. He is not a brother, he's like a mentor, क्योंकि उसने मेरे को सिखाया कि सीधी बात सीधी कैसे करते हैं, किसी से बिना डरे कैसे बोलते हैं, सीधी बात, गलत तो गलत, सही तो सही, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। उसके बाद बुक्स लिखना मेरे को सिखाया डॉक्टर कृष्णा एन शर्मा, ही इज लाइक राइट नाउ चांसलर इन यूनिवर्सिटी ऑफ युगांडा। सो देयर मेनी फिजियोथेरेपिस्ट आई अडोर, जिन्होंने मुझे जिंदगी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लाइक I'll name डॉक्टर प्रतीक व्यास इज देयर, so he's a Yeah, sports, we बहुत also चीजें admire सिखाते him. हैं। So he has taught me how to be a patient, patience, how to have patience. Dr. Shannon Picardo is there, Dr. Manali is there, Dr. Kanika Tyagi is there, Dr. Ambuj is there, Dr. Imanshu is there. So this list, like Dr. Marish is there, Dr. Sunil is there, Navneet is there. There are a lot of people I admire, even my students also. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जैसे अभी हैना से मैंने लास्ट शो किया था, हैना के साथ। Yes, I never yes. met her. I never met her, but she's an amazing physio. We are not promoting each other. भाई प्रमोट करना एक दूसरे को, मैं गुफरान को प्रमोट करूंगा तो उससे मेरा फायदा है, गुफरान को कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे यू शुड प्रमोट ईच अदर। जब तक हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक फायदा। हम क्या कर रहे हैं ना, गुफरान के 8,000 हो गए फॉलोअर, मेरे नहीं हुए 4 भी। गुफरान ने कुछ गलत किया क्यों भाई? Right. उसने मेहनत करी, यू शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। मुझे याद है जब तूने चैनल शुरू किया था, दैट टाइम आल्सो यू कांटेक्टेड मी, तूने Yes, शायद कितने 50 या 60 फॉलोअर हुआ करते थे तुम्हारे। yes. आई हैव अभी सीन एक यू साल ग्रो, हो गया सर। I have seen you grow from in 1 year, 8,000 subscribers you have. So this is called as growth. So you should admire each and every person. मतलब जरूरी नहीं है कि वो जूनियर सीनियर, अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता जूनियर सीनियर से। और सब These लोगों are को people लगता who है कि फेक फॉलोवर्स है या कुछ, हाँ बट दिस ऑल दिस आर ऑर्गेनिक। है, मैं क्या बोल रहा हूँ, है। हमारे सारे फॉलोअर फेक हैं, क्या कर लोगे? तुम ले लो, नहीं कर सकते ना कुछ, तो वो जिसको बोलने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर, कोठारी ऋतिक is asking you how was your experience in learning taping in abroad? Hello, हाँ, again. can you hear Now me? I can hear you. Yeah, now I can hear you. Sir, Kothari Ritik is asking you that how was your experience learning taping in abroad? See, first of all, I have done my K-taping not in abroad. The company was called in India. I did it in Chennai, right? So the company basically is from Germany. Dry Okay. needling I did abroad, and taping was in India, very frankly. So before that, I was doing sports taping. So I have a good idea about sports taping, and then I wrote a book on taping. That's why I came into the market. सो बाहर जाके डॉलर खर्च करने का मेरे को कोई शौक नहीं है, बिकॉज मेरा फंडा सिंपल है कि अकेला मैं बाहर जाऊंगा 5 लाख रुपए लगा के आऊंगा, इससे अच्छा 5 लाख उसको देके वी कैन एजुकेट 10 पीपल हियर। सर टाइमर आ गया है, सो आई गेस दिस विल एंड। ठीक है, तो तू फिर से कितने क्वेश्चन रह गए हैं वो देख ले, क्योंकि आई हैव टू लाइक 5:30 इज माय पेशेंट। ओके। हाँ, तो अगर वो टाइम पे आए तो जब वो आएगी तब मैं देख, कोई बात नहीं, यू विल रीस्टार्ट।